हेलो गाइस, मेरा नाम है रितिका त्यागी। आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, क्या इसका मेजरिंग यूनिट होता है, किस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर इट इज गिवन दैट rate at which electric energy is consumed or dissipated into other form of energy means इलेक्ट्रिक पावर क्या है, एक दर है, एक रेट है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस दर से कंज्यूम की गई किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू और किस दर से वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की गई। दोनों ही टर्म हम कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल कैपिटल P, फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, एंड देयर आर अदर फॉर्मूले दैट इज V मल्टीप्लाई I स्क्वायर R and V square by R. These are also the formulas of power. डेरिवेशन इनका किस तरह से होता है या किस तरह से इनको ड्राइव कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की जूल पर सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं वॉट। जूल कैसे आता है, वर्क डन का यूनिट जूल एंड टाइम का यूनिट सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड, एंड 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। Next, horsepower. 1 horsepower equals to 746 watt. Horsepower is the bigger unit of electrical energy or electrical power which is majorly used in electric motors in heavy appliances. और horsepower equals 746 watt. That is the relation between horsepower and watt. ये थोड़ा याद रखने के लिए है और ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिटवीन horsepower and watt. Let us look the derivation of the formulas of power by R. अब हम पावर के फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे, जो कि होंगे P इक्वल V मल्टीप्लाई I, P इक्वल I स्क्वायर R एंड P इक्वल V स्क्वायर बाई R। अब हम ये देखते हैं इन फॉर्मूलों को ड्राइव कैसे करना है। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, पावर इक्वल वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन in electrical energy consumption is equals to voltage applied multiplied current multiplied time. Put the value of W in P equal W by T equation. We get V multiply I multiply T by T, cancel T by T, then we get P equal V multiply I. It is the first formula of power, that is P equal V multiply I. Next, formula P equal I square R. Apply Ohm's law. We know that V equal IR. Put this value of V in equation first. From equation first, we get P equal VI and V equal IR. Then it is P equal I square R. It is the second formula for power, that is P equal I square R. Next, third formula, P equal V square by R. Then we put the value of I in equation second. Then we get P equal V square by R square multiply R, R cancel R, then we get P equal V square by R. This is the third formula of power. Let us take a look how these equations are derived. As we know, power equal work done by time. Work done in electrical energy consumption is equal to वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम। कितना वोल्टेज दिया, कितना करंट डेवलप कराया सर्किट में, कितने टाइम के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ W इन P इक्वल W बाई T एंड वी गेट V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कैंसिल टाइम, देन वी गेट पावर इक्वल V मल्टीप्लाई I, विच इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर। नेक्स्ट, we have to derive the second formula, that is P equal I square R. Here we use the Ohm's law. V equal IR. Put the value of V, that is IR, here. Then we get P equal I square R, which is the second equation or second formula of power. Next, we have to derive the third formula of power.
So here we use the I equation, that is I equal V by R. Put the value of I in equation second, then we get V square by R square multiply R cancel R, then finally we get the third formula of power, that is P equal V square by R. I hope आपको ये formula derivation समझ आए. Question on numerical. On the basis of power, what will be the current drawn by electric bulb of 40 volt? 40 volt power है. What is the SI unit of power when it is connected to a source of 220 volt? तो यहाँ पर हमें I को कैलकुलेट करना है, करंट का वैल्यू. पावर इज गिवन दैट इज 40 वोल्ट and potential difference V is 220 volt. Now applying the formula for power in which V and I are included, that is P equal V multiply I. Now I equal P by V. Putting the value for P, that is 40, and for V 220. 0 cancel 0. Cancel it by 2, we get 2 by 11. On dividing 2 by 11, we get 0.182 एम्पियर करंट. इस न्यूमेरिकल में I का वैल्यू फाइंड करना था. P का वैल्यू 40 वोल्ट, V का वैल्यू 220 वोल्ट. P का फॉर्मूला लगाया जिसमें I और V आए हुए हैं, तो P इक्वल V मल्टीप्लाई I के लिए फॉर्मूला P बाई V. P के लिए वैल्यू पुट किया, V के लिए वैल्यू पुट किया है. 0 से 0 कैंसिल एंड इसको हमने 2 से कैंसिल आउट किया. 2 बाई 11. 11 से जब हम 2 को डिवाइड देते हैं, दैट इज 0.182 एम्पियर करंट. हियर इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल. What current will be taken by 920 volt appliance if the supply voltage is 230 volt? यहाँ कहा गया है करंट कितना होगा अप्लायंसेस में अगर यहाँ पे पावर 920 वोल्ट की दी गई है, पावर 920 वोल्ट की सप्लाई की गई विद वोल्टेज 230 वोल्ट का मेंटेन किया गया. देन P इक्वल V मल्टीप्लाई I एंड I इक्वल P by V. Putting the value for P is 920. Divided it by V, that is 230. 0 cancel 0. Next 92 divided by 23, we get 4 ampere current. Here I find करना था. Value of P is given, that is 920 volt. Value of V 230 volt. P equal V into I. I का वैल्यू निकालने के लिए P अपॉन V वैल्यू पुट किया P के लिए एंड V के लिए और सोल्व करने पर 4 एम्पियर करंट. Here is next numerical. When an electric lamp is connected to a 12 volt battery, value of V is given 12 volt. Draws a current, value of I 0.5 एम्पियर. पावर ऑफ द लैम्प इज, पावर हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. पावर का फॉर्मूला V मल्टीप्लाई I, देन वैल्यू ऑफ V 12 मल्टीप्लाई 0.5, displace the decimal, then we get 60 by 10, cancel the zeros, then we get 6 volt power. Here value of V is given 12 volt, I value 0.5 एम्पियर. वैल्यू ऑफ P कैलकुलेट करना है. P के लिए फॉर्मूला V मल्टीप्लाई I, वैल्यू पुट किया, डेसिमल को डिस्प्लेस कराया और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 6 वोल्ट का पावर सप्लाई. द नेक्स्ट टॉपिक इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस यूनिट में मेजर करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उसके लिए यूनिट होती है किलोवाट आवर. उसका सिंबल KWH, किलोवाट एंड आवर. तो याद रखना है कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट आवर. हियर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड. यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला जिससे हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी या हमारे घरों में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी आया है, उसका बिल कितना बनेगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट्स, कितना यूनिट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम हुआ है इज इक्वल टू वॉट. वॉट मतलब पावर मल्टीप्लाई आवर्स, आवर्स मतलब टाइम,
मल्टीप्लाई डेज, कितने डेज के लिए हमने उसको यूज़ किया, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अप्लायंसेस, वो अप्लायंस कितने थे, कितने दिनों के लिए, कितने घंटों के लिए, और कितने पावर के वो अप्लायंस हमने ऑपरेट किए। एंड यहाँ पर पावर अगर वॉट में है तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू किलोवाट, बिकॉज कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट आवर। तो आवर तो यहाँ पे आ चुका है, टाइम हम आवर में लेंगे, लेकिन पावर अगर यहाँ पे वॉट में दिया तो 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर ऑलरेडी यहाँ पे किलोवाट पावर दी हुई है तो उस कंडीशन में किलोवाट टाइम मतलब डेज, टाइम हो गया आवर्स, डेज, और नंबर ऑफ अप्लायंसेस, सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें 1000 की जरूरत नहीं होगी अगर यहाँ पे पावर किलोवाट में दी हुई है। किलोवाट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अप्लायंसेस, दैट्स इट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? न्यूमेरिकल में पर यूनिट का कॉस्ट दिया होता है, तो उसका वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कंज्यूम एनर्जी यूनिट्स, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट्स कंज्यूम हुई है उसको हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बेस पर अब एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं ताकि हमें समझ आए। हियर इज अ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। An electric motor of power 5 kilowatt switched on for 6 hours per day. How much energy in units consumed in 30 days? Given क्या है? Power 5 kilowatt. Time period दिया है 6 hours per day. And number of days का वैल्यू है 30 days. यूनिट्स हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल पावर इन किलोवाट, किलोवाट में चाहिएगा, मल्टीप्लाई टाइम आवर्स में, और मल्टीप्लाई डेज। इसके लिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पावर हमें दिया है 5, टाइमिंग हमें दिया है 6 आवर्स, and number of days for 30 days. Then number of units consumed equal 900 units. यहाँ पे हमें पावर 5 किलोवाट में दिया, टाइम 6 आवर्स में दिया, डेज 30 डेज के लिए ऑपरेट किया। नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करना था, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इक्वल हो जाएगा पावर, जो कि किलोवाट में चाहिए, अगर वॉट में दिया तो 1000 से डिवाइड, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज एंड टाइम इन आवर्स। तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ था किलोवाट में, ऑलरेडी मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया, 6 आवर्स के लिए ऑपरेट किया, 30 डेज के लिए सिंपल मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट, हियर इज अनदर न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, एनर्जी कंज्यूम एंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। पावर दिया है 4 किलोवाट, वैल्यू ऑफ V 220 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में करंट को कैलकुलेट करना है, द करंट, फाइंड द करंट। देन वी नो दैट P इक्वल V मल्टीप्लाई I, देन I इक्वल P बाई V, पुटिंग द वैल्यू फॉर P दैट इज 4 किलोवाट। किलोवाट को हमें यहाँ पे वोट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम यहाँ करंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। देन मल्टीप्लाई 1000 एंड द वैल्यू ऑफ द V इज 220 वोल्ट। कैंसिल द जीरोस एंड simplified it by 2. We get 200 by 11 ampere current. Next, we have to find out the resistance in the heater. Then second part के लिए R को कैलकुलेट करना है। बाय ओम्स लॉ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, P का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं ओम्स लॉ से इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, मेरे पास I भी है और V भी है। देन R इक्वल V बाई I, V का वैल्यू 220, I का वैल्यू 200 बाई 11, देन 11 ऊपर गया, 220 बाई 11 अपॉन 200, cancel the zeros and simplify it by 2, we get 10, multiply 11 and 11,
the product of 11 and 11 is 121 divided by 10. We get the resistance of 12.1 omega. Now, in third part, we have to calculate the energy consumed in 2 hours. हमें यहाँ पे energy consumed निकालना है. तो energy consumed इक्वल हो जाएगा power in kilowatt multiply time in hours, that is 2 hours. यहाँ पर पावर हमें ऑलरेडी 4 किलोवाट में दिया है, टाइम हमें 2 आवर्स के लिए पूछा है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ 8 यूनिट्स और 8 किलोवाट आवर. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें P का वैल्यू 4 किलोवाट में दिया था, V का वैल्यू 220 वोल्ट, I का वैल्यू कैलकुलेट करना था. फॉर्मूला लगाया I = P/V. इसको हमने सोल्व किया, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 से इसको सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट 200/11. इसको मैंने डेसिमल में नहीं लाया. सेकंड पार्ट में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो मैंने डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाया V/I के लिए. V का वैल्यू हमें दिया था 220 एंड I का वैल्यू हमने फाइंड किया, वैल्यू पुट किया 11 न्यूमरेटर में और इसको सोल्व करके 12.1 का रेजिस्टेंस आया. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स हमें कैलकुलेट करना था. एनर्जी इक्वल हो जाएगा पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाई टाइम. टाइम आवर्स में चाहिए था, ऑलरेडी दिया 2 आवर्स. पावर ऑलरेडी इन किलोवाट 4 किलोवाट मल्टीप्लाई किया, देन 8 यूनिट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. इफ 1 किलोवाट आवर प्राइस्ड एट ₹4.60, तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है. In D part, cost of electric energy consumed is equal to rate of unit, that is 4.60, multiply consumed units, that is 8 units. 8 units का electric energy consume हुआ और उसका रेट 4.680 है, तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट है 6.80 रुपीज़. यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालना था. 2.60 का 1 यूनिट का कॉस्ट है, 8 यूनिट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटल कंज्यूम, तो 36.80 का टोटल कॉस्ट यहाँ पे बना, 36 रुपीज़ एंड 80 पैसे. द लास्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? जैसा कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको इंडेक्स दिखाया, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था. मैंने आपको 3 तरह के इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के डिस्कस कराए वहाँ पर. हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. मैग्नेटिक इफेक्ट को हम इसके सेकंड चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट आता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट. तो हीटिंग इफेक्ट को हम अब पढ़ते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, the electrons collide with each other and they will produce heat in the conductor and make it hot. जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में करंट को पास कराते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कोलाइड विद ईच अदर. इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करने चाहिए. जब इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करते हैं वही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस हाई हो और करंट पास करने पर करंट कन्वर्ट हो जाए हीट में. तो जब कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर हीट का प्रोडक्शन करता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसा कि हम यहाँ रूम हीटर के लिए देख सकते हैं. अपने घरों में इलेक्ट्रिक आयरन और हेयर ड्रायर, इस तरह के कुछ अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग होते हैं. तो सिंपल कंडीशन है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई हो, इलेक्ट्रिक करंट हम वहाँ पे देंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. थोड़ी बहुत हीट वहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, या ज़्यादा भी कर सकता है, और डिपेंड करता है उस अप्लायंस के एप्लीकेशन पर. सिंपल टर्म्स में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, जिससे हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का मेजर स्टेटमेंट क्या होगा, क्या उसका फॉर्मूला बनेगा और किस तरह से हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अब इस चीज़ को हम देखते हैं. जेम्स जूल derived the relation for quantity of heat generated in a conductor of resistance R. तो जेम्स जूल पूरा नाम है साइंटिस्ट का. उन्होंने कितना क्वांटिटी ऑफ हीट का प्रोडक्शन होगा किसी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R है, उसका रिलेशन दिया और उस रिलेशन को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहा गया.
कुछ मेजर फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं हीट प्रोडक्शन इन एन अप्लायंस क्या है वो? दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन करंट I इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर टाइम इंटरवल T, यानी ये कहते हैं कि जब करंट को पास कराया किसी भी आप रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में टाइम इंटरवल T के लिए, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट फैक्टर यहाँ मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकेंड फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स पता चले। अब इसका थर्ड फैक्टर और है, दैट इज टाइम। जेम्स जूल थे, इन्होंने एक रिलेशन दिया कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में करंट I को पास कराने पर रेजिस्टेंस अगर उस अप्लायंस का R है। तो वहाँ कहा गया कि हीट प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड फैक्टर इसका देखते हैं। द थर्ड फैक्टर इज हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, यानी थर्ड फैक्टर यहाँ पे हमें मिला हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर टाइम पीरियड, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर टाइम पीरियड। तो तीन फैक्टर हैं जो हीट प्रोडक्शन को किसी भी अप्लायंस में डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, सेकंड, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, एंड थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। Here the formula is H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R मल्टीप्लाई T। यही फॉर्मूला इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर बनेगा। यहाँ पर इक्वलिटी में लाने के लिए 1/j को शो किया गया है I स्क्वायर R T का प्रोडक्ट के साथ। अब ये 1/j को तब यूज करते हैं जब हम हीट को किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी में। यहाँ लिखा है 1/j k के इक्वल होगा, k क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यानी हम अगर यहाँ पे लिख रहे हैं h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, देन राइट प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी एज k I स्क्वायर RT एंड द k इज इक्वल टू 1/j। यहाँ पे k ही क्या है, 1/j है, और वैल्यू ऑफ k SI यूनिट में हमेशा 1 होता है। Here J is the conversion factor called Joule's mechanical equivalent of heat। J का नाम है Joule's mechanical equivalent of heat और इसका वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम जूल में निकालें एनर्जी को तो हमें यहाँ पे K को कंसिडर करना होगा SI सिस्टम के लिए, क्योंकि जूल SI सिस्टम में आती है। तो उस कंडीशन में K का वैल्यू 1 फॉर SI सिस्टम। तो ये 1 का वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो I स्क्वायर RT का फॉर्मूला हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे हीट कैलोरी में चाहिए तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे 1/j को यूज करना होगा I स्क्वायर RT के प्रोडक्ट के साथ। यूज लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का पता चला, जिसमें हमें पता चला कि हीट प्रोडक्शन अप्लायंस का 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तीनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बनता है I स्क्वायर RT। इक्वलिटी में लाने के लिए K का यूज करते हैं। K का वैल्यू SI सिस्टम में 1 होता है अगर हमें जूल में हीट एनर्जी निकालना है। अगर हमें यहाँ पे इसको कैलोरी में लाना है तो हमें K की जगह 1/j को यूज करना है और उसका वैल्यू 4.2 होता है। Here is a numerical on the basis of heating effect of current. Calculate the heat energy produced in a resistance of 5 ohms when 3 ampere current flows through it for 2 minutes. यहाँ पे हमें हीट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। R का वैल्यू हमें 5 ओमेगा गिवन है, I का वैल्यू 3 एम्पियर एंड टाइम पीरियड इज 2 मिनट। फर्स्ट, कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड मल्टीप्लाइंग 60, दैट इज 120 सेकेंड्स। यहाँ पर हमें H का वैल्यू फाइंड करना है। R का वैल्यू 5 ओमेगा, I का वैल्यू 3 एम्पियर, टाइम पीरियड 2 मिनट, कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 60 दैट इज 120 सेकेंड्स। यूज करते हैं जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट से I स्क्वायर RT, H इक्वल I स्क्वायर RT। वैल्यू इसमें पुट डाउन करते हैं। I का वैल्यू 3 दैट इज 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 120, देन वी गेट 9 600। ओवरऑल हीट प्रोडक्शन इज 5400 जूल्स। ये जूल में हीट प्रोडक्शन हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे K का वैल्यू 1 की तरह कंसिडर करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया।
और मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हैं वो जूल के लिए दी हैं। कैलोरीज में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं इसे 4.2 से डिवाइड कर दूंगी। द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम हीटिंग इफेक्ट को किन किन अप्लायंसेज में यूज़ कर रहे हैं। कई बार पेपर में इन अप्लायंसेज के नाम लिखने के लिए आ जाते हैं। 2-3 अप्लायंसेज के नाम आपको याद होने चाहिए। Heating effect of electric current used in electric appliance like electric heater, electric iron, electric room heater, immersion heater, the kettle, hair dryer, etc. In this appliance have a coil of wire called element. Electric current flows through the element, becomes hot and give out heat. Amount of heat produced in a wire depend on its material length and thickness. कुछ आपको appliances शो किए गए हैं, that is electric room heater, electric iron and electric heater. यहाँ कहा गया है कुछ अप्लायंसेज ऐसे हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक रूम हीटर के अंदर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। होता क्यों है, कारण क्या है, इनके अंदर एक कोयल होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है तो वो हॉट हो जाता है। जब ये वायर गर्म हो जाता है तो हीट प्रोडक्शन करता है। अब कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा वायर में, वो डिपेंड करता है उस वायर के मटेरियल पर, उसकी लंबाई पर, लेंथ पर, उसकी थिकनेस यानी मोटाई पर।